Greetings in the precious and matchless name of our Lord and Savior Jesus Christ. हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से आप सबको जय मसीह की। Once again today welcome you to the series of messages on covenants. और आज फिर से आपका स्वागत है वाचा इस श्रृंखला पर। In the Cutting a Covenant series, और ये वाचे के श्रृंखला में we are on the 8th part today. आज हम 8वें भाग में पहुंचे हैं। And today's topic is exchange of oath. आज का शीर्षक है शपथ के अदला बदली। Now you should never forget the first base verse which I told you right from the class number 1, right from the first part I have been telling you. और पहले भाग से ही मैं आपको एक मुख्य बात बता के आ रहा हूँ। It is the Hebrew word berith. You should never forget that word berith. इब्रानी शब्द बेरीत को आप कभी ना भूलना। And that is the word which is there in Genesis 1:1 itself. और वह शब्द उत्पत्ति के पहले अध्याय पहले वचन में ही हम पाते हैं। Bereshit bara Elohim et hashamayim va et haaretz. बेरेशित बेरा एलोहिम एत हाशमाइम व एत हाआरेत। And in the first word Bereshit, that word berith is there. और वह पहले शब्द बेरेशित में ही बेरित शब्द है। We are created for covenant. हमें वाचे के लिए बनाया गया। And if we don't understand covenant, our life becomes purposeless. और अगर हम उस वाचे को ना समझे तो हमारे जीवन का कोई मतलब ही नहीं। When you entered into a covenant relationship with God, जब आप परमेश्वर के संग एक वाचे के रिश्ते में बंधे, when did that happen? कब वो हुआ था? At the time of water baptism. जब पानी का बपतिस्मा लिया। So when we have taken that water baptism, जब हमने पानी का बपतिस्मा लिया, our covenant relationship has started. हमारे वाचे का रिश्ता शुरू हो गया वहीं पर। And from that time till the eternal life, we are in covenant. वहाँ से लेके हमारे अनंत जीवन तक हम वाचे में हैं। So now in that covenants, we are coming to a very, very important part today, which is called the exchange of oath. और उस वाचे में आज हम बहुत ही एक मुख्य शीर्षक पर आए हैं, जो है शपथ का अदला बदली। We have to be very careful what we are speaking. हमें बहुत सावधान रहना है कि हम क्या बात बोलते हैं। What is the benchmark for us to understand a person is saved or not? और क्या एक मनुष्य का उद्धार हुआ है या नहीं, उसके लिए मानदंड क्या होता है। Now I am going to ask a question to you. अभी मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा। How do we know a person is saved? कैसे हम जाने कि एक मनुष्य का उद्धार हुआ है? How? Our way of checking is, और हम किस प्रकार हम देखते हैं? is a person coming to church. क्या वह कलीसी आता है? He is coming to church, which means the person is saved. अगर वह कलीसी आता है, इसका मतलब उसका उद्धार हुआ है। Now sometimes we see a person is sitting very silently. कभी हम देखते हैं एक मनुष्य बहुत ही चुपचाप बैठा है। Now we have a doubt. अभी हमारे मन में शक होता है। But if a person is sitting in front and clapping their hands and still is singing loudly, means we think, he should be saved person. लेकिन अगर कोई आगे बैठ कर वो तालियां बजाकर जोर से वो गाता है, तो हमें समझ आता है कि उसका उद्धार हो चुका है। But we fail to see the life of a person. लेकिन एक मनुष्य के जीवन को देखने में हम असफल हो जाते हैं। That is a very important point to check in the person's life. उसके जीवन में बहुत मुख्य बात जो हमें देखनी है, How is his speech? उसका भाषण या उसकी बातचीत कैसी है। Is he honoring the word what he says? और जो भी वो मुंह से निकालता है, क्या उसका सम्मान रखता है। Much of the times we don't bother about the speech of a person. कई बार एक मनुष्य के मुंह से जो वचन होते हैं उस पर हम परवाह नहीं करते। What does the Bible say? बाइबल में क्या लिखा है? Let your yes be yes and no be no. तुम्हारी हाँ हाँ में रहे और ना ना में रहे। Is our speech like that? क्या हमारी बातचीत ऐसी है? We have to analyze that today. आज हमें उसका विश्लेषण करना है। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। If we have entered into a covenant relationship with our God, अगर हम अपने परमेश्वर से एक वाचे के रिश्ते में बंधे हैं, from where we are speaking, कहाँ से हम बात करते हैं? I am a saved person. I am saying I am a saved person. मैं कहता हूँ कि मैं उद्धार पाया मनुष्य हूँ। How I got saved? कैसे मेरा उद्धार हुआ? Through the death, burial and resurrection of our Lord.
हमारे प्रभु के मृत्यु, उनके गाड़े जाने और उनके पुनरुत्थान के द्वारा। So how when people are seeing, they are seeing me as a Christian, as a third person. और जब लोग मुझे देखते हैं तो एक मसीही के रूप में, उद्धार पाए मनुष्य के रूप में देखते हैं। They are also watching how I am speaking. ये भी देखते हैं कि मैं किस प्रकार बात करता हूँ। If I am saying I am going to come tomorrow at a particular time, I have to honor that word. अगर मैं कहता हूँ कि कल मैं इस समय पर आऊँगा तो मुझे उसका सम्मान रखना है। If I say I am going to give you, I have to give you. अगर मैं कहूँ मैं तुम्हें ये चीज दूंगा तो मुझे उसे पूरा करना है। If we don't fulfill our word, at least we need to inform, yes, I am not able to give at this time, I will be giving at another time. All this we have to fulfill. अगर हम नहीं उसे पूरा कर पाते तो भी हमें एटलीस्ट उन्हें बताना है कि आज मैं नहीं दे पा रहा, मैं बाद में तुम्हें दूंगा। Today, now all these things are forgotten. आजकल ये सब बातें भुला दी गई हैं। Now it causes a huge damage to our Christian community. और ये हमारे मसीही समुदाय के लिए बहुत भारी नुकसान पहुंचाता है। Every Christian should understand that they are the children of the covenant. हर एक मसीह को ये जानना है कि वह वाचे की संतान है। If our life is not proper, अगर हमारा जीवन उचित नहीं है then God is not pleased with our worship, with our giving and all the other things. तो परमेश्वर हमारी भेंट, हमारी आराधना से प्रसन्न नहीं होते। So let us discuss very clearly about the exchange of vote. तो आज हम बहुत ही स्पष्ट रीति से देखेंगे ये शपथ की अदला बदली। If a person is thoughtlessly speaking something, अगर कोई मनुष्य बिना सोचे समझे कुछ बातें कर if he देता makes the promise suddenly without giving any thought, और कोई प्रतिज्ञा कर देता है बिना सोचे, then it means he is breaking the covenant. इसका मतलब वह वाचे को तोड़ता है। In all the creation, only human being has been created in the image of God. और सारी सृष्टि में सिर्फ मनुष्य जाति एकमात्र ऐसी सृष्टि है जो परमेश्वर के स्वरूप में बनाई गई। So as a covenant document, this Bible has been given to us. This is the covenant book. और ये वाचे के दस्तावेज के रूप में ये बाइबल हमें दी गई है। And this gives us many laws. The Torah has been given to us. और हमें तोरा दिया गया है, बहुत से नियम दिए गए हैं। So we should be people who follow that. तो हमें प्रतिदिन उसका हमें पालन करना है। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। Let us turn our Bible to Leviticus chapter 5 verse 4. लय व्यवस्था की पुस्तक 5वां अध्याय उसका 4था वचन हम पढ़ेंगे। Yes, Leviticus 5:4. और यदि कोई बुरा व भला करने को बिना सोचे समझे शपथ खाए, चाहे किसी प्रकार की बात वह बिना सोचे विचारे शपथ खाकर कहे, तो ऐसी बात में वह दोषी उस समय ठहरेगा जब उसे मालूम हो जाएगा। In case if somebody says something and doesn't fulfill, that person will be guilty. और अगर कोई बात मुंह से शपथ खाकर उसे पूरा नहीं करता तो वह दोषी ठहराएगा। Today, how many people are aware of this? आज कितने लोग इस बात से वो जानते हैं? Can I ask you how many people are following this? क्या मैं पूछूं कि आप में से कितने लोग इसका पालन करते हैं? How many of you seriously feel, I told this because I told this, I have to fulfill this? How many of you feel that? कितने लोग ये समझते हैं क्योंकि मैंने ये बात अपने मुंह से निकाली है, मुझे उसे पूरा करना है। This verse in the book of Leviticus, और लय व्यवस्था में जो ये वचन है, the problem is people say today Leviticus, they don't read Leviticus first. समस्या ये है कि आजकल के लोग लय व्यवस्था की पुस्तक ही नहीं पढ़ते। And when they are not reading the book of Leviticus, how they will know? और अगर लय व्यवस्था की पुस्तक ही नहीं पढ़ेंगे तो कैसे वो जानेंगे? No, Old Testament I am not following, Old Testament I don't know, all these things. How a person will know? पुराना नियम में नहीं पालन करता, मैं नहीं जानता, कैसे वो जानेंगे? My dear child of God, मेरे प्रिय परमेश्वर की संतान, what comes out of our mouth is very important. हमारे मुंह से जो शब्द निकलते हैं बहुत ही मुख्य है वो। Let us turn our Bible to the book of Genesis chapter 31. उत्पत्ति की पुस्तक उसका 31 अध्याय लेंगे We are going to have a Bible reading from verse 44 to 53. और 44 से लेके
53 वचन तक हम पढ़ेंगे। Yes, Genesis chapter 31, 44 to 53. अब आ मैं और तू दोनों आपस में वाचा बांधे और वह मेरे और तेरे बीच साक्षी ठहरी रहे। तब याकूब ने एक पत्थर लेकर उसका खंभा खड़ा किया। तब याकूब ने अपने भाई बंधुओं से कहा, पत्थर इकट्ठा करो। ये सुनकर उन्होंने पत्थर इकट्ठा करके एक ढेर लगाया और वहीं ढेर के पास उन्होंने भोजन किया। उस ढेर का नाम लाबान ने तो यसर सहादुया, पर याकूब ने जिलियाद रखा। लाबान ने कहा कि ये ढेर आज से मेरे और तेरे बीच साक्षी रहेगा। इस कारण उसका नाम जिलियाद रखा गया और मिस्पा भी, क्योंकि उसने कहा कि जब हम उस दूसरे से दूर रहें तब यहोवा मेरी और तेरी देखभाल करता रहे। यदि तू मेरी बेटियों को दुख दे व उनके सिवाय और स्त्रियां ब्याह ले तो हमारे साथ कोई मनुष्य तो ना रहेगा, पर देख मेरे तेरे बीच में परमेश्वर साक्षी रहेगा। फिर लाबान ने याकूब से कहा, इस ढेर को देख और इस खंबे को भी देख, जिनको मैंने अपने और तेरे बीच में खड़ा किया है। ये ढेर और ये खंबा दोनों इस बात के साक्षी रहे कि हानि करने की मनसा से ना तो मैं इस ढेर को लांग कर तेरे पास जाऊंगा, ना तू इस ढेर और इस खंबे को लांग कर मेरे पास आएगा। इब्राहिम और नाहोर और उनके पिता तीनों का जो परमेश्वर है सो हम दोनों के बीच न्याय करे। तब याकूब ने उसकी शपथ खाई जिसका भय उसका पिता इसहाक मानता था। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। Now, I am going to highlight some very important verses to you. अभी इसमें बहुत ही मुख्य कुछ वचन मैं आपको बताऊंगा। Now, Jacob and Laban are getting into a covenant. याकूब और लाबान एक वाचा बांधते हैं Now, verse 44. और 44 में ऐसा लिखा है, Let us make a covenant and let it serve as a witness between us. हम दोनों आपस में वाचा बांधे और वह मेरे और तेरे बीच साक्षी ठहरी रहे। They are piling up some stones and they are making a covenant. कुछ पत्थरों का ढेर बनाते हैं, वहाँ पर एक वाचा बांधते हैं। Now, what is Laban calling it in verse 47? और 47 में लाबान उसका क्या नाम रखते हैं? Jahar Sahaduta. यसर सहादुआ। What is Jacob calling it? याकूब उसे क्या बुलाते हैं? Galil. जिलियाद। So, both are calling with different names. दोनों अलग अलग नाम से उसे बुलाते हैं। Now, in verse 53, और 53 में हम देखते हैं, you see what it says. May the God of Abraham, the God of Nahor, and the God of their father judge between us. This is what Laban said. लाबान का वाक्य ऐसा है कि इब्राहिम और नाहोर और उनके पिता दोनों तीनों का जो परमेश्वर है वो हमारे बीच न्याय करे। So Jacob took an oath in the name of the fear of the father of his father Isaac. लेकिन याकूब ने उसकी शपथ खाई जिसका भय उसका पिता इसहाक मानता था। Both are taking the oath, दोनों शपथ खाते हैं, but there is a difference. लेकिन एक फर्क है। Laban is taking लाबान भी लेता है in the name of God of Abraham, God of Nahor. इब्राहिम और नाहोर के परमेश्वर के नाम से। Who is God of Nahor? नाहोर के परमेश्वर कौन है? That is not our God. वो हमारे परमेश्वर नहीं, That is not Jehovah God. वो यहोवा परमेश्वर नहीं, That is Satan. वो शैतान है। Laban wants to take the oath in the name of Satan. लाबान शैतान के नाम से शपथ लेना चाहता है। That what is Isaac, Jacob doing? लेकिन याकूब क्या करता है? Jacob takes the oath in the name of his father, the fear of his father Isaac. लेकिन उसके पिता इसहाक जिसका भय मानते थे उसके नाम से शपथ ली। Now, if you take the life of Isaac, अगर आप इसहाक का जीवन लेते हैं, which is the most important matter in the life of Isaac? इसहाक के जीवन सब में उसके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण कौन सी बात है? Isaac is there. इसहाक है वहाँ पर। In his life, one day Ishmael is being sent out of the house. और एक दिन इस्माइल को घर से बाहर भेज दिया जाता है। That is the time in his life when he is
digging the well and it has been claimed by other people. उसके जीवन में ऐसा समय आता है जब वो कितने कुएं को वो ऐसे खोदते हैं लेकिन कोई और उस पर कब्जा करता है। Isaac experience, इस एक का अनुभव, Sitna experience, शितना का अनुभव, Rehoboth experience, रहबोत का अनुभव, and many things happens in the life of Isaac. इसहाक के जीवन में ऐसी बहुत सी घटनाएं होती हैं। But if you ask Isaac, which is the most unforgettable time in your life, अगर आप इसहाक से पूछेंगे तुम्हारे जीवन में कौन से ऐसे समय जिसे कभी तुम नहीं भूल सकते, he will tell one incident. एक घटना बताएगा। What is that incident? कौन सी घटना है वो? His father Abraham is taking him on top of Mount Moriah. उनके पिता अब्राहम उन्हें मोरिया पर्वत पर ले जाते हैं। And he is going with his father, अपने पिता के संग जाते हैं and the father is going to offer a sacrifice to the Lord. और उनके पिता परमेश्वर के लिए एक बलि चढ़ाने वाले हैं। And he's asking his father, Father, which is the sacrifice? अपने पिता से पूछते हैं कि बलि कहाँ है यहाँ पर? And Abraham says, God will provide. परमेश्वर और अब्राहम कहते हैं परमेश्वर उसका उपाय खुद करेंगे। But at one particular point of time, लेकिन एक समय पर Abraham is tying Isaac, अब्राहम इसहाक को बांधता है, and Isaac is being placed in the altar. इसहाक को वेदी पर डाल दिया जाता है। And you just imagine the fear and tension which would have come in the life of Isaac at that time. और ये सोचिए उस समय इसहाक के जीवन में कितना भय छाया होगा। Have we gone close to death? क्या हम मृत्यु के इतने करीब गए हैं? That at immediately after some time, within a few minutes, you are going to die. Have you come to that stage? कैसे ऐसे स्तर पर क्या आए हैं कि कुछ ही मिनटों में हमारी जान निकलने वाली है? So now Isaac is lying in the altar. अभी इसहाक वेदी पर लेटा हुआ है। Few minutes. कुछ क्षण, In few minutes, he is going to die. कुछ ही मिनटों में वो मरने वाला है। So inside Isaac, there is a fear. इसहाक के अंदर ऐसा एक भय छा जाता है। They don't have scripture that time. और वहाँ उस समय उनके पास शास्त्र नहीं थे। They not have one verse of scripture that time. उस समय एक भी शास्त्र का वचन उनके पास नहीं था। So Isaac is in fear. इसहाक बहुत भय में है। Lord, I am going to die. परमेश्वर मैं तो मरने को हूँ अभी। My father is going to kill me. मेरे पिता मुझे मारने को है। He is going to offer me a sacrifice. मुझे बलिदान के रूप में चढ़ाने वाले हैं। The fear of father Isaac. और इसहाक के मन में जो भय आया उस समय, The fear. जो भय, And at that time, God is calling out, उस समय परमेश्वर पुकारते हैं, Abraham, Abraham, अब्राहम अब्राहम, don't lay your hand on your son. अपना हाथ अपने बालक पर मत रखना, Turn back and see. पीछे मुड़कर देखो And you see a ram. और वहाँ पर एक मेंढा देखते हो। At that moment, उस समय how that fear would have gone away from Isaac. कैसे इसहाक के हृदय से वह भय बाहर निकला होगा। And Isaac is coming. इसहाक वापस आते हैं। Now, there cannot be any special incident in the life of Isaac than this. इस घटना के अपार और कोई इतनी मुख्य घटना नहीं हो सकती इसहाक के जीवन में। So what is Jacob taking an oath now? अभी याकूब क्या शपथ खाते हैं? The fear of his father Isaac. उस परमेश्वर के नाम से जिसका भय इसहाक के अंदर था। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। Now, Laban and Jacob have entered into a covenant. लाबान और याकूब एक वाचे में बन चुके हैं। Who is the God of Isaac? और इसहाक के परमेश्वर कौन हैं? It refers to our Lord Jesus Christ. वो हमारे प्रभु यीशु मसीह को बताते हैं। Isaac and our Lord Jesus Christ both have gone on top of the same mountain. इसहाक और हमारे प्रभु उसी पहाड़ पर चढ़े थे। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। The exchange of oath is a very, very important matter in the covenant. शपथ की अदला बदली वाचे में एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। Let us turn our Bible to the book of Exodus chapter 20 verse 7.
निर्गमन की पुस्तक उसका 20 अध्याय 7वां वचन हम पढ़ेंगे। Exodus 27. तो अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ न लेना, क्योंकि जो यहोवा का नाम व्यर्थ ले वह उसको निर्दोष न ठहराएगा। This is one commandment which comes with the punishment. और ये एक आज्ञा जो एक दंड के साथ आती है। Don't misuse the name of God, otherwise you will be held guilty. परमेश्वर का नाम व्यर्थ न लेना, नहीं तो वह तुम्हें निर्दोष नहीं ठहराएगा। So in our speech we have to be very, very careful. हमारे बातचीत में हमें बहुत ही सावधान रहना है। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। Now we are going to discuss a few things about Peter. अभी हम पतरस के विषय में कुछ बातों को देखेंगे। 3 statements which Peter has made. 3 वाक्य जो पतरस ने कहे। Let us see one by one. एक एक करके हम देखेंगे। Mark chapter 14 verse 29. मरकुस की पुस्तक 14 अध्याय उसका 29वां वचन। Yes, Mark chapter 14:29. Please read. पतरस ने उससे कहा, यदि सब ठोकर खाएं तो खाएं, पर मैं ठोकर नहीं खाऊंगा। Even if all fall away, I will not. सब भी ठोकर खा ले, लेकिन मैं ठोकर नहीं खाऊंगा। So what is his first statement? उसका पहला वाक्य क्या है? I will not forsake you. मैं कभी तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। Let us go to the second statement. दूसरे वाक्य पर जाएंगे। Matthew chapter 26 verse 35. मत्ती का 26 अध्याय उसका 35वां वचन। Yes. पतरस ने उससे कहा, यदि मुझे तेरे साथ मरना भी हो तो भी मैं तुझसे कभी न मुकरूंगा। और ऐसा ही सब चेलों ने भी कहा। So second statement is telling, I will even die with you. दूसरा वाक्य ये कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ मरने के लिए भी तैयार हूँ। Now we'll come to the third statement. अभी तीसरे वाक्य पर आएंगे। Luke chapter 22 verse 33. लूका का 22 अध्याय उसका 35वां वचन। Lord, I am ready to go with you to prison and to death. उसने उससे कहा, हे प्रभु, मैं तेरे साथ बंदी गृह जाने के लिए भी तैयार हूँ। I will go to prison, Lord. मैं बंदी गृह जाऊंगा। So what are the 3 statements I will repeat to you? तो 3 वाक्य क्या हैं जो पतरस ने कहे थे? First, I will not forsake you, Lord. पहले कि मैं कभी भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। Second is telling, I will die with you, Lord. दूसरा कहता है, मैं आपके संग में मरने के लिए तैयार हूँ। Thirdly, he is telling, I will go to prison with you, Lord. तीसरा कहता है, मैं आपके संग बंदी गृह जाऊंगा। Now these 3 statements which Peter told, अभी ये 3 वाक्य जो पतरस ने कहे, now we will see 3 times Peter has denied. अभी हम देखेंगे 3 बार पतरस ने इनकार किया। Matthew chapter 26 verse 69 to 70. अभी मत्ती की पुस्तक 26 अध्याय उसका 69 और 70वां वचन। और पतरस बाहर आंगन में बैठा हुआ था कि एक लड़की ने उसके पास आकर कहा, तो वे यीशु गलीली के साथ था। उसने सबके सामने ये कहकर इनकार किया और कहा, मैं नहीं जानता तो क्या कह रही है। So the first statement what Peter told, I will not forsake you, here he has already forsaken. और जो पहला वाक्य पतरस ने कहा था कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, अभी वह छोड़ चुका है। Second, Matthew chapter 26 verse 72. दूसरा मत्ती का 26 अध्याय उसका 72 वचन हम पढ़ेंगे। उसने शपथ खाकर फिर इनकार किया कि मैं उस मनुष्य को नहीं जानता। He is totally denying, I don't know. पूरी तरह से इनकार करता है, मैं नहीं जानता उसे। Third statement, now Matthew chapter 26 verse 74. और तीसरा हम देखते हैं मत्ती का 26 उसका 74। तब वह धिक्कार देने और शपथ खाने लगा कि मैं उस मनुष्य को नहीं जानता, और तुरंत मर्ग ने बांध दी। 3 times Peter gave a confirmation, but here 3 times Peter has denied. 3 बार पतरस ने शपथ दी थी और 3 बार इनकार किया।
Now, let us turn our Bible to the book of John, chapter 21, यूहन्ना की पुस्तक लेंगे, उसका 21वां अध्याय, verse 15 to 17. उसका 15 से 17। What is our Lord doing there? Let us see here. हम देखेंगे हमारे प्रभु वहाँ पर क्या करते हैं। John, chapter 21, verse 15 to 17. यूहन्ना का 21 उसका 15 से 17वां वचन। Yeah. भोजन करने के बाद यीशु ने शिमोन पतरस से कहा, हे शिमोन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू तो जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। उसने उससे कहा, मेरे मेमनों को चरा। उसने फिर दूसरी बार उससे कहा, हे शिमोन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? उसने उनसे कहा, हाँ प्रभु, तू जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। उसने उससे कहा, मेरी भेड़ों की रखवाली कर। उसने तीसरी बार उससे कहा, हे शिमोन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? पतरस उदास हुआ कि उसने उसे तीसरी बार ऐसा कहा कि क्या तू मुझसे प्रीति रखता है, और उससे कहा, हे प्रभु, तू तो सब कुछ जानता है, तो ये जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। यीशु ने उससे कहा, मेरी भेड़ों को चरा। Now, do you understand what our Lord Jesus Christ is doing here? क्या आप समझ पा रहे हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर क्या कर रहे हैं? Peter denied 3 times. पतरस ने 3 बार इनकार किया। Our Lord Jesus Christ wants to reinstate Peter back. हमारे प्रभु यीशु मसीह पतरस को फिर पुनर्स्थापित करना चाहते हैं। That is the reason he is asking Peter, do you love me? Do you love me? Do you love me? इसीलिए वह बार बार पूछते हैं पतरस से, क्या तुम मुझसे प्रीति रखते हो? Now 3 times God says, feed my sheep, feed my sheep. और 3 बार परमेश्वर कहते हैं कि मेरी भेड़ों को चरा, मेरी मेमनों को चरा। Do you say, I love Jesus? क्या तुम कहते हो मैं यीशु मसीह से प्रेम करता हूँ? Then what you should do? तो तुम्हें क्या करना है? Feed my sheep. मेरी भेड़ों को चरा। Speak, teach to the people. मेरे प्रजा को तुम सिखाओ, उनको शिक्षा दो। How we show we love Jesus? कैसे हम दिखाएं कि हम यीशु से प्रेम करते हैं? Feed his sheep. उनके भेड़ों को चराकर Go and teach people. जाकर लोगों को सिखाओ। So now we cannot say there is no chance of restoration for me. अभी हम नहीं कह सकते कि हमारे लिए बहाली की कोई मुमकिन बात ही नहीं। Peter fell down, पतरस नीचे गिरा, but our Lord Jesus Christ is lifting him up and reinstating him. लेकिन हमारे प्रभु यीशु मसीह उसे उठाकर उसे फिर से स्थापित करते हैं। Now Peter, after reinstated, और पतरस उसके पुनर्स्थापित होने के बाद what happens in his life? उसके जीवन में क्या होता है? Now we are going to see the sermons which Peter is preaching. पतरस कौन से प्रचार करता है हम देखते हैं। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। Acts chapter 1 verse 15 to 16. प्रेरितों के काम उसका पहला अध्याय 15 और 16 पढ़ेंगे। Yes. और उन्हीं दिनों में पतरस भाइयों के बीच में जो 120 व्यक्ति के लगभग इकट्ठे थे, खड़ा होकर कहने लगा, हे भाइयों, आवश्यक था कि पवित्र शास्त्र का ये लेख पूरा हो जो पवित्र आत्मा ने दाऊद के मुख से यहूदा के विषय में, जो यीशु के पकड़ने वालों का अगुआ था, पहले से कही थी। The first sermon which Peter is preaching is about the denial. और पहला उपदेश जो वो देते हैं वो उस इनकार के बारे में है। Now, first, actually, he only told, I will not deny you. उसने ही कहा था कि मैं आपको कभी छोड़ूंगा नहीं। Normally, if a person is not reinstated, अगर किसी का पुनर्स्थापित नहीं होता है, he will feel still that guilty is there. उसके मन में वो जैसे वो दोष महसूस करता रहेगा, He cannot confidently speak. और वह विश्वास से नहीं प्रचार कर सकता। He himself will be a little shy and he will not be able to speak properly. और उसमें वह विश्वास आत्मविश्वास नहीं होगा, ठीक से बात नहीं कर पाएगा। But because Peter has been reinstated by our Lord Jesus Christ, लेकिन क्योंकि हमारे प्रभु ने
पतरस को फिर से पुनः किया। Confidently he is speaking now. बहुत विश्वास के साथ उठकर बात करता है। Our Lord Jesus has forgiven the sin of Peter. और हमारे प्रभु यीशु मसीह ने पतरस के पाप को क्षमा कर दिया। My dear child of God. मेरे प्रिय परमेश्वर की संतान, So here his first sermon itself is based on the denial of Jesus Christ. और यहाँ उसका पहला उपदेश ही विश्वासघात के बारे में और यीशु मसीह के इनकार के बारे में था। He is talking about the betrayal of Judas. और यहूदा के विश्वासघात के बारे में कहता है। Turn your Bible to Matthew 27 verse 9 and 10. मत्ती की पुस्तक 27 अध्याय उसका 9 और 10 पढ़ेंगे। Yes, Matthew 27 9 and 10. तब जो वचन यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हुआ कि उन्होंने वे 30 सिक्के अर्थात उस ठहराए हुए मूल्य को जिसे इस्राएल की संतान में से कितनों ने ठहराया था ले लिए, और जैसे प्रभु ने मुझे आज्ञा दी थी वैसे ही उन्हें कुम्हार के खेत के मूल्य में दे दिया। Now Matthew says that it was spoken by prophet Jeremiah. और मत्ती ऐसा कहते हैं कि यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता ने ये कहा था, That 30 pieces of silver, that denial of Jesus Christ, that betrayal of Jesus Christ, Matthew says it has already been spoken of prophet Jeremiah. और 30 सिक्के चांदी के जो उसने विश्वासघात किया था उसके बदले में लिया, ये कहते हैं यिर्मयाह ने कहा था इसे। But actually if you search this verse in Jeremiah, it will not be there. लेकिन अगर आप यिर्मयाह की पुस्तक में ढूंढेंगे तो ये वचन नहीं मिलेगा। But it is told in Zechariah. लेकिन जकरिया में इसके बारे में बताया गया है। Turn your Bible to Zechariah chapter 11 verse 13. जकरिया की पुस्तक उसका 11 अध्याय उसका 13वां वचन हम देखेंगे। Yes. तब यहोवा ने मुझसे कहा, इन्हें कुम्हार के आगे फेंक दे, ये क्या ही भारी दाम है जो उन्होंने मेरा ठहराया है। तब मैंने चांदी के उन 30 टुकड़ों को लेकर यहोवा के घर में कुम्हार के आगे फेंक दिया। Now why this should be in Jeremiah, how it is there in Zechariah? अभी ऐसे कैसे लिखा है कि यिर्मयाह ने कहा है लेकिन इसे हम जकरिया में देखते हैं। Has Matthew made a mistake? क्या मत्ती ने कोई गलती की है? Not at all. नहीं, बिल्कुल नहीं। Who is Matthew? मत्ती कौन है? He is a tax collector. और वो चुंगी लेने वाला। Now those people will be very very pakka. और ये लोग तो बहुत ही पक्के होते हैं। He has checked and he has given the right information here. और उसने जांच करके सही जानकारी दी है यहाँ पर। Zechariah was a student of Jeremiah for 13 years. 13 साल जकरिया यिर्मयाह का विद्यार्थी रहा है। So there is nothing wrong in mentioning that. तो इस ऐसे कहने में कोई गलती नहीं की उन्होंने। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। So Matthew is giving a right information. तो मत्ती सही जानकारी देते हैं। Nothing wrong in telling Matthew saying it is spoken by Jeremiah because Zechariah was a student. और इसमें कोई गलती नहीं कि मत्ती ने कहा कि यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता ने ऐसा कहा है क्योंकि जकरिया उनका विद्यार्थी थे। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। Let us turn our Bible to the book of Acts chapter 1 verse 20. प्रेरितों के काम पहला अध्याय उसका 20वां वचन हम पढ़ेंगे। Yeah. क्योंकि भजन संहिता में लिखा है कि उसका घर उजड़ जाए और उसमें कोई न बसे और उसका पद कोई दूसरा ले ले। Now he is talking about the quotation in Psalms. अभी वो भजन संहिता से वचन कहते हैं। Which quotation is this? और कौन सा वचन है ये? Psalm 69 verse 25. भजन संहिता का 69 का 25वां वचन। May their place be deserted, let there be no one to dwell in their tents. उनकी छावनी उजड़ जाए, उनके ढेरों में कोई ना रहे। Psalms 109 verse 8. भजन 109 का 8 यूं कहता है, May his days be few, may another take his place of leadership. उसके दिन थोड़े हों और उसके पद को दूसरा ले। So
all this from the scriptures Peter is quoting and he is giving the message. और ये सब शास्त्र से वचन लेकर पतरस संदेश देते हैं। How they are choosing another one man? और कैसे दूसरे को चुनते हैं वो, It is for the top post. और वो बड़े ही उच्च पद के लिए। They are replacing Judas now. यहूदा को वो उसके बदले में किसी और को रखते हैं। It is not like we are appointing a president for a church or a secretary for a church. ऐसा नहीं कि कोई कलीसिया के लिए कोई प्रेसिडेंट को नियुक्त करते हैं या सेक्रेटरी को रखते हैं। There is another one person put in the place of the disciple of Lord Jesus Christ. यीशु मसीह के चेलों में से एक के स्थान पर दूसरे को नियुक्त किया जा रहा है। So what they are doing? तो क्या करते हैं? They are casting lots. वो चिट्ठियां डालते हैं। Or are they putting vote? या क्या वो वोट करते हैं? What do you think? आप क्या सोचते हैं? They put vote or they are casting lot? क्या वो वोट डालते हैं या चिट्ठियां डालते हैं? Chittiya. They are casting lots, correct? और वो चिट्ठियों को डालते हैं। When you cast lots, you allow the Holy Spirit to work. जब आप चिट्ठियां डालकर लेते हैं तो पवित्र आत्मा को आप अनुमति देते हैं कि अपना कार्य करे। See, if you are putting vote means it is politics. और अगर आप वोट्स डालते हैं तो वो राजनीति बन जाता है। When you are putting lots, it is biblical. लेकिन जब आप चिट्ठियां डालते हैं तो बाइबल के मुताबिक है वो। And let us see verse number 21 here. Acts 1 verse 21. और प्रेरितों के काम पहला अध्याय उसका 21वां वचन हम देखेंगे। Yeah. इसलिए जितने दिन तक प्रभु यीशु हमारे साथ आता जाता रहा, अर्थात यूहन्ना के बपतिस्मा से लेकर उसके हमारे पास से उठाए जाने तक, जो लोग बराबर हमारे साथ रहे। So now with the lot, Matthias is being selected. और अभी इस चिट्ठियों को डालकर मत्तियास को चुना जाता है। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। So Peter's first sermon, तो पतरस का पहला प्रचार, when he has told, I will never leave you, जब उसने कहा है कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, he is confident now. After he has denied Jesus, confidently he has been reinstated and he is giving the message. इनकार करने के बाद उसको पुनर्स्थापित किया गया और बहुत विश्वास के साथ वह प्रचार करता है। Peter is speaking a second sermon. अभी पतरस एक दूसरा प्रचार करता है। And what is that second sermon? और वह दूसरा प्रचार क्या है? What did he say? Second statement? दूसरा वाक्य उसने क्या कहा था? Do you remember? क्या आपको याद है? Can somebody say what did Peter say second? क्या कोई बता सकता है कि पतरस ने दूसरा क्या कहा था? I am ready to die with you. Very good. मैं आपके साथ मरने के लिए तैयार हूँ। Now you see what Peter is speaking. अभी आप देखो पतरस क्या कहते हैं। Acts chapter 2 verse 14. प्रेरितों के काम दूसरा अध्याय उसका 14वां वचन। Yes, Acts 2:14. पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ और ऊंचे शब्द से कहने लगा कि हे यहूदियों और हे यरूशलेम के सब रहने वालों, ये जान लो और कान लगाकर मेरी बातें सुनो। Everybody listen to me. सब लोग ध्यान से सुनिए। Now go to verse 23 and 24. अभी 23 और 24वां वचन जब हम देखते हैं, Yeah. उसी को जब वह परमेश्वर की ठहराई हुई मनसा और होनहार के ज्ञान के अनुसार पकड़वाया गया, तो तुमने अधर्मियों के हाथ से उसे क्रूस पर चढ़वा कर मार डाला, परंतु उसी को परमेश्वर ने मृत्यु के बंधनों से छुड़ाकर जिलाया, क्योंकि ये अनहोना था कि वह उसके वश में रहता। What is the speech he is giving? अभी वह क्या प्रचार करते हैं? He is talking about the resurrection of our Lord Jesus Christ. वो हमारे प्रभु के पुनरुत्थान के विषय में कहते हैं। You caught him and you crucified him और तुमने उसे पकड़वा कर उसे क्रूस पर चढ़ा दिया, because it was impossible for death to keep its hold on him. और ये नामुमकिन था कि मृत्यु उन्हें अपने वश में बनाए रखे। What is the solution for death? उसका मृत्यु का समाधान क्या है? Peter told, I am ready to die with you. पतरस ने कहा था, मैं आपके साथ मरने के लिए तैयार हूँ। Now he is speaking about resurrection. अभी वह पुनरुत्थान की बात करता है। So this gives a confirmation for the second statement he made, that Jesus Christ has reinstated him.
और ये दूसरा वाक्य जो उसने कहा था, अभी वह ये कहते हैं कि यीशु मसीह ने उन्हें पुनर्स्थापित किया है। My dear children of God, are you able to understand? मेरे प्रिय परमेश्वर की संतान, क्या आप समझ पा रहे हैं? When we fall, when we ask forgiveness to God, God is ready to reinstate us. और जब हम गिर जाते हैं, परमेश्वर से क्षमा मांगते हैं, हमें फिर से पुनर्स्थापित करने के लिए परमेश्वर तैयार होते हैं। Acts chapter 2 verse 16 to 21 talks about salvation. प्रेरितों की पुस्तक दूसरा अध्याय उसका 16 से 21 उद्धार के विषय में कहता Now है। you can read that afterwards. आप बाद में उसे पढ़ सकते हैं। Acts chapter 2 16 to 21 talks about salvation. और प्रेरितों के काम दूसरा अध्याय 16 से 21 उद्धार के विषय में कहता है। Now that is also quoted in Joel chapter 2. योएल के दूसरे अध्याय में भी वो लिखा है। Secondly, about resurrection, और दूसरा पुनरुत्थान के विषय में Acts chapter 2 25 to 28 speaks. और प्रेरितों के काम दूसरा अध्याय उसका 25 से 28 में लिखा है। That is also quoted in Psalm 16 verse 8 to 11. और वो भजन संहिता 16 के 8 से 11वें वचन में भी लिखा है। Thirdly, तीसरा Acts chapter 2 33 to 36 talks about the ascension. और प्रेरितों के काम दूसरा अध्याय उसका 33 से 36 में आरोहण के बारे में लिखा है। That is given in Psalms 110 verse 1. वो भजन संहिता के 110 पहले वचन में दिया गया है। So Peter is talking about the resurrection, और पत्रस पुनरुत्थान के विषय में कहते हैं, which is exactly the solution for death. और जो मृत्यु का समाधान है। I am ready to die with you. मैं आपके साथ मरने के लिए तैयार हूँ। He is insisting one thing, that I am also going to be resurrected. ये भी वह जोर देते हैं कि मेरा पुनरुत्थान भी होगा। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। Let us go to the third sermon what Peter is speaking. अभी तीसरे प्रचार पर जाएंगे जो पत्रस देते हैं। Actually, it is a very big portion, but I will say specific words, verses that we can read. और बहुत बड़ा भाग है, लेकिन मैं कुछ चुने वचन उसमें बताऊंगा जिसे पढ़ेंगे। Acts chapter 3 verse 12 to 26. प्रेरितों के काम तीसरा अध्याय उसका 12 से 26वां Now वचन। this gives the total, the third sermon which Peter is speaking. और ये तीसरा प्रचार जो पत्रस ने किया था उसे देता है। But I will highlight all the important verses here. लेकिन इसमें मुख्य वचन मैं आपको बताऊंगा। Now please read verse 13. अभी हम 13वां वचन पढ़ेंगे। इब्राहिम और इसहाक और याकूब के परमेश्वर, हमारे बाप दादों के परमेश्वर ने अपने सेवक यीशु की महिमा की, जिसे तुमने पकड़वा दिया, और जब पिलातुस ने उसे छोड़ देने का विचार किया, तब तुमने उसके सामने उसका इनकार किया। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। So now we are going down and going to read verse 22. अभी हम 22वां वचन पढ़ेंगे। जैसे कि मूसा ने कहा, प्रभु परमेश्वर तुम्हारे भाइयों में से तुम्हारे लिए मुझ सा एक भविष्यद्वक्ता उठाएगा, जो कुछ वो तुमसे कहे उसकी सुनना। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। Now verse number 25. अभी 25वां वचन 25 and 26. 25 और 26 पढ़ेंगे। तुम भविष्यद्वक्ताओं की संतान और उस वाचे के भागी हो, जो परमेश्वर ने तुम्हारे बाप दादों से बांधी, जब उसने इब्राहिम से कहा कि तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी के सारे घराने आशीष पाएंगे। परमेश्वर ने अपने सेवक को उठाकर पहले तुम्हारे पास भेजा कि तुम में से हरेक को उसकी बुराइयों से फेर कर आशीष दे। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। He is speaking about God of Abraham, God of Isaac, God of Jacob. इब्राहिम और इसहाक और याकूब के परमेश्वर के विषय में कहते हैं। In Exodus chapter 6:3, God says, I appeared to Abraham, Isaac and Jacob as God Almighty. और निर्गमन के 6:3 में कहते हैं कि मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर के नाम से इब्राहिम, इसहाक और याकूब को दर्शन देता था। Now Peter is speaking about that. और उसके बारे में पत्रस कहते हैं। And Acts chapter 3:22 is there he is speaking about Moses. और प्रेरितों 3:22 में मूसा के विषय में कहते हैं। Then Acts chapter 3:25 and 26 he is speaking about Abraham. और फिर 25 और 26 में इब्राहिम के बारे में कहते हैं।
Now, in Genesis chapter 22, verse 18, and through your offsprings, all nations on earth will be blessed because you have obeyed me. उत्पत्ति के 22:18 में यूं कहते हैं, और पृथ्वी की सारी जातियां अपने को तेरे वंश के कारण धन्य मानेंगी, क्योंकि तूने मेरी बात मानी है। So, when Peter gives the third sermon, जब पतरस तीसरा प्रचार करता है, what happens? क्या होता है? It is given in chapter 4, verse 3. और प्रेरितों के 4:3 में उसके बारे में लिखा है। What is told there? क्या लिखा है वहाँ पर? Yeah. और उन्होंने उन्हें पकड़कर दूसरे दिन तक हवालात में रखा, क्योंकि संध्या हो गई थी। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। What was the third statement which Peter said? तीसरा वाक्य पतरस ने क्या कहा था? पहले First he said, I will never deny you. पहले कहा था कि मैं कभी नहीं ठुकराऊंगा। He denied and Jesus reinstated. उसने ठुकराया और यीशु मसीह ने पुनर्स्थापित किया उसे। Secondly, he said, I am ready to die for you. दूसरा कहा, Die with you. आपके साथ मरने के लिए तैयार हूँ। He first left then and Jesus reinstated. और फिर उसने अपने वाक्य को छोड़ दिया और फिर उसे पुनर्स्थापित किया गया। What is the third statement? तीसरा वाक्य क्या है? I am ready to go to jail with you. मैं आपके साथ बंदी गृह जाने को तैयार हूँ। What happens here? अभी यहाँ पर क्या होता है? Acts chapter 4 verse 3 says, प्रेरितों के 4:3 में यूं लिखा है, they seized Peter and John, and because it was evening, they put them in jail. पतरस और यूहन्ना को पकड़कर हवालात में रखा उन्होंने। How serious is the words which we speak from our mouth, my dear children of God? अपने मुंह से जो बात निकालते हैं कितनी गंभीरता से होते हैं वो। Whenever a word is coming out of our mouth, may it go through the Holy Spirit and then let it come out. जब भी कोई बात हमारे मुंह से निकले तो पवित्र आत्मा को पार कर ही वो आए। Can we examine ourselves? Are we truthful in the speech what we are speaking? क्या हम अपने आप की परख करेंगे कि क्या हम अपनी बातों में सच्चाई बनाते रहते हैं? How many of you want to accept that you have failed in your promises you have made? आप में से कितने लोग ये मानने के लिए तैयार हैं कि आपने जो भी प्रतिज्ञा की उसमें विफल हुए थे? If we have failed in our promises, that means we have broken the covenant. अगर हम अपनी प्रतिज्ञा में विफल हुए, इसका मतलब हमने वाचे को तोड़ दिया। What we speak, हम जो बात करते हैं, if we are not able to fulfill, अगर उसे पूरा नहीं कर पाते, what question our Lord is asking? हमारे प्रभु क्या सवाल करते हैं? Do you love me? क्या तुम मुझसे प्रीति रखते हो? Do you love me? क्या तुम मुझसे प्रीति रखते हो? Do you love me? क्या तुम मुझसे प्रीति रखते हो? Every time our Lord is asking, do you love me? हर बार हमारे परमेश्वर पूछते हैं, क्या तुम मुझसे प्रीति रखते हो? It is an opportunity for you to be reinstated. और ये आपके लिए अवसर है कि आपको पुनर्स्थापित किया जाए। Don't feel guilty, my dear children of God. इसके बारे में तुम दोषी मत एहसास करो। Come back, get reinstated with the Lord. वापस आओ और परमेश्वर के साथ पुनर्स्थापित हो जाओ। No, tell God, I love you, Lord. और ये साबित करो और परमेश्वर से कहो, मैं आपसे प्रेम करता हूँ प्रभु। Today we have understood that the words which come out of our mouth is very serious. आज हम समझ पाए कि हमारे मुंह से निकले शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। Take your words very seriously. अपने बातों को गंभीरता से लीजिए। We are people of the covenant. हम वाचे के लोग हैं। We should not be playing with words. हमें शब्दों के साथ खेलना नहीं। Take a decision today. एक निर्णय लीजिए आज। I will be very serious with my words. मैं अपने शब्दों के साथ बहुत ही गंभीरता से रहूंगा। Whatever I say, I will fulfill that. मैं जो भी कहूँगा उसे पूरा करूँगा मैं। Ask forgiveness to God for whatever you have not kept. परमेश्वर से क्षमा मांगिए आप जिस बातों को भी आप नहीं रख पाए। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। Your words are very important. आपके शब्द वचन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। May God help every one of us that we keep up our words at all times. परमेश्वर हम सब की सहायता करे कि हर समय
हम अपने वचनों को निभा सकें। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष करें। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष करें।